Yeah guys, just a second. Sure. Yeah, just a second. Yeah, so I welcome you all to Pinnacle Guidance and Tutorials. Fine. So what we are going to do today? Today our topic is reading comprehension. I'm starting with a new session, new set of classes. Fine. On reading comprehension. Reading comprehension is one of the most important question that you can expect in your English set of questions in your exams. Fine. In reading comprehensions are really very important for any of the exams, in maybe it NDA, CDS, INET, FCAT, or bank SSCs, bank IBPS, PO, RRB, NTPC, or any SSC exam like CGL, CHSL, MTO, or stenographer, or anything. Fine. Because this reading comprehension, in this reading comprehension question, actually they test two things in you. First is that do you have any idea of English? Second, can you understand what is written? Third, do you have aptitude mind or reasoning mind, that can you take information from that passage and answer the question? Fine. So these three things are being tested in reading comprehension. Okay, so what it is, actually reading comprehension is like something you are given the word, you are giving a whole paragraph, and on the basis of those paragraphs some questions are being given. Fine. और ये हमारी एक्चुअली में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लास है. सो मैं सोच रहा हूँ उसको थोड़ा मैं मोर इंग्लिश में स्टार्ट करूँ, सो दैट आपका एक बेसिक वो बने कि दैट यू कैन कॉम्प्रिहेंड व्हाट आई से, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई से. फाइन. सो okay, so actually comprehend this RC is an important test, ठीक है, in most of the competitive exams. Okay, some of them have separate sections for comprehensions where candidates have to work on several passages. Fine. What does this comprehend means? Comprehend means is to understand. Fine. Okay, you are required to go through a passage, grasp it and gist, and then answer the question based on it. Fine. It involves the use of vocabulary, your sense of language, your ability to locate meanings, your intelligence to assess the real spirit of the passage, and your capability infer conclusions from the given content. Fine. So this is the whole scenario of reading comprehension. Okay, so it is advisable to improve your sense of language and stock of words by reading regularly. Fine. And bringing new words in your day-to-day usage of language. So the basic thing that you can work upon from today itself. Fine. After seeing my video, go and research on some words. Fine. Increase your vocabulary. Fine. And use them in day-to-day manner. Fine. So your homework for the day is that after going through this whole video, you have to write 5 words below in the comment section, and then write each sentence on each. Fine. Okay. So actually to solve this reading comprehension question, we take an INI formula. What is INI? Okay, INI is like information, elimination, and inference. Fine. So information can be a direct or implied. Fine. Direct or implied means that you can directly, like if it is given that animal is a dog, this is a direct. Fine. Okay. Or there can be some indirect or implied information also. Fine. Which is not given directly, but you have to that means if there is an animal over there, fine, that implies that there is no human.
Fine. Okay, if there is written that there in the zoo there were only animals, fine. That was the first example. This is the second, that it was written there was only animals in the zoo, fine. But only animals, but there can be humans to visit that zoo. Okay, this is the first scenario. Second scenario is that there are only animals and no human was allowed to visit that zoo for that particular time or that particular moment. Fine. And this is the implied information that you are getting from this sentence. Okay. So elimination is like never and ever you don't have to opt any option. Fine. Like you are getting a question and you are getting 5 options, you don't have to pick C. Fine. You have to eliminate A, B, D, E. Fine. You have to go and answer each of the sentence whether it fulfills the question's criteria or not. If it doesn't fulfill the question's criteria, you have to eliminate. Fine. You don't have to pick that C. Fine. Inference is like means, what is first thing that inference means is like the word inference means to arrive at a logical conclusion. Fine. It means there can be simple inferences also and there can be complex inferences also. So that means if it is written like there is a simple post box. Fine. There is a simple post post box. Yeah. So a simple inference can be given that post box cannot stand in air. Fine. It cannot stand in air, so it has to some pole like of a thing or a stick thing should be held, should be there to support that post box to stand in air. Fine. This is normal inference that you can get. Okay, so what are the steps to implement this IEE? Don't worry if you are not getting this IEE, you don't have to because this RC thing is not something like you know that formula or then you have to paste that formula. No, you many of the tuitions or tutorials don't teach these things, but they imply such thing. But what happens then? You don't know what they are doing. So I started with this IEE formula, IEI formula, and now I'm going to implement this. Fine. Okay. So these are the things that you should know, because they are really very easy to use and they save your time a lot. Fine. Or this, how to implement this? First you have to read the question, what is written in the question, and read the whole passage, retain the information. Fine. If you have a paper based exam, then underline the important information. Else if you have a computer based exam, you can write the information in small words. Fine. Okay. Underline the answers for the retained question. You have to retain you in the first step I told you that you have read all the questions. Fine. Then you have to read the information in the passage related to the question. Underline the answers that you think that the question answers to that question that you read in step 1. Fine. And solve the whole question by IEI formula, this IEI. Fine. Okay, so now I am starting with an very easy RC that is you don't have to infer many things from it, just you have to go through the passage once. Fine. I'll be giving you 1 minute to go through the passage one, then I'll be discussing each and every small point with that RC. Then you can you will be knowing how to implement this IEI rule. Fine. Once you get this implementation, how to implement this IEI rule, then RC is really a piece of cakewalk for you. Fine. Okay. So yeah. So yes. Fine. Okay. Moving on with our first passage, you will be getting 1 minute. You will be getting one and a half minutes to read the whole passage.
Fine, then we'll be discussing answers. Okay, sure. So here's the passage. You are getting 1.5 minutes. So 1.5 minutes. Fine. So I'll discuss this passage, what this passage is all about, then I'll move on with the questions. Fine. Okay, so this passage is really very easy because it is the first class of RC. Okay, I just want to go slow with the process so that you have a strengthier, you have more better base, fine, on which you build up your exam RC question. Fine. Okay, so the question is, read the passage and answer the following questions. Okay, I won't be reading the questions before. First I'll be explaining each line by line the passage, then I'll be moving on with the questions. Okay, work expands so as to fill the time available for its completion. मतलब आपके पास अगर कुछ काम है, ठीक है, काम जैसे कि लेट अस सपोज आपको एक बुक पढ़नी है, ठीक है, वो बुक समझ लीजिए सिर्फ 50 पेजेस की छोटी सी बुक है. फाइन. अब वो 50 पेजेस की छोटी सी बुक मैक्सिमम अगर कोई अच्छा रीडर है तो इट्स लाइक मतलब 1.5 और 1 आवर जॉब, 1 से 1.5 घंटे का जॉब है, ठीक है, अगर कोई अच्छा रीडर है. बट अगर उस अच्छे रीडर के पास बहुत सारा टाइम है, काफ़ी सारा टाइम है, वो बहुत फ्री है और उसके पास कोई और दूसरा काम नहीं है कंप्लीट करने का, और उसके पास टाइम कितना है, टाइम है उसी बुक को पढ़ने के लिए 5 आवर्स. तो वही अच्छा रीडर उस एक बुक को कंप्लीट करने में, जो कि वो 1 घंटे से 1 से 1.5 आवर्स लेता है, वही सेम रीडर 5 आवर्स पूरे 5 आवर्स ले लेगा टू कंप्लीट दैट स्मॉल 50 पेजेस बुक. ठीक है, ये इस सेंटेंस का मतलब हुआ. वर्क एक्सपैंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन. ठीक है, द जनरल रिकग्निशन ऑफ दिस फैक्ट इज शोन इन द प्रोवर्बियल फेज. इसका मतलब होता है इस चीज़ को एक्सप्लेन या फिर इस चीज़ को मतलब एक इमेज कैसे फॉर्म की गई है, वो इमेज फॉर्म की गई है यूजिंग दिस प्रोवर्ब. अब वो प्रोवर्ब क्या है? इट इज़ द बिजिएस्ट मैन हु हैज़ टाइम टू स्पेयर. अब क्यों बोल रहे हो वो, पहले तो आप बोल रहे बिजिएस्ट मैन फिर टाइम टू स्पेयर. इसका मतलब होता है जो बिजी मैन होता है ना, उसके पास सारी चीज़ें एक ऑर्डर में होती है, ठीक है, तो वो कहीं से टाइम निकाल सकता है, स्पेयर कर सकता है टाइम, ठीक है. बट एक नॉन बिजी मैन, एक लीजर मैन, मतलब किसी को उसके पास कोई काम नहीं है, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, उसका पूरा दिन काम ही चलता रहेगा, वो कभी भी फ्री नहीं होगा. ठीक है, तो ये होता है इस प्रोवर्ब का मतलब. इट इज़ द बिजिएस्ट मैन हु हैज़ टाइम टू स्पेयर. ठीक है. 10. अब एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. एग्जाम्पल क्या है? 10 एन एल्डरली लेडी एट लीजर can spend the entire day writing a postcard, another hunting
फॉर स्पेक्टिकल्स। मतलब क्या है, अगर मैं यहीं तक समझा रहा हूँ, एक बूढ़ी औरत है, एल्डरली लेडी, मतलब ओल्ड एज वुमेन है, ठीक है, उसके पास बहुत टाइम होता है, ठीक है, और वो उस टाइम को कैसे स्पेंड करती है, पूरा एक दिन वो कैसे स्पेंड करती है, सिर्फ राइटिंग में निकाल देती है। अब मैं बताता हूँ, एक खत लिखने के लिए एक बूढ़ी औरत पूरा दिन निकाल देती है। अब वो कैसे, 1 घंटा तो उसको पहले का अनदर हंटिंग फॉर स्पेक्टिकल्स, मतलब कि वो पहले सोचने में थोड़ा टाइम लगाती है, ठीक है, कि लिखें या ना लिखें। उसके बाद थोड़ा टाइम लगाती है अपने चश्मा ढूंढने में। फिर क्या लिखता है, ½ एन आवर टू सर्च फॉर द एड्रेस। अब वो किसे लिखे, तो वो आधे घंटे उसका एड्रेस ढूंढने में लगाती है, ठीक है। 1 hour and a quarter in compassion and 20 minutes in deciding whether or not to take umbrella। अब ये एक या सवा घंटा मतलब वो लिखने में लगा देती है, ठीक है। कंपैशन का मतलब होता है, कंपैशन का मतलब यहाँ से हो रहा है कि वो क्या लिख रही है उस पोस्ट कार्ड में, ठीक है। कंपैशन का मतलब होता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो आप किसी के लिए, तो उसे कंपैशन बोल दिया जाता है। फाइन, ओके। सो 20 minutes इन डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू टेक अम्ब्रेला। अब 20 मिनट वो उस अम्ब्रेला को ले जाए बाहर जाने के लिए या नहीं, उसमें ही उसके 20 मिनट निकल जाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब वो जाती है एक वही बोला था ना, पिलर बॉक्स क्या मतलब वो जाएगी पोस्ट बॉक्स स्ट्रीट। अब दिस द टोटल एफर्ट दैट वुड ऑक्यूपाई अ बिजी मैन, मतलब ये जो उसने पूरा सोचा कि लिखें कि ना लिखें, चश्मा ढूंढा, उसके बाद एड्रेस ढूंढा, फिर उसको मतलब उस पोस्ट कार्ड पे अपना जो भी उसको मतलब लेटर में लिखना था वो लिखा, फिर मतलब ये अम्ब्रेला ले जाएं कि ना ले जाएं, फिर उसको स्ट्रीट पे मतलब थोड़ी दूर अपने घर से अब डिलीवर करने में पूरा एक दिन लग गया इसको। 24 आवर्स लग गए। किसको लग गए? एक एल्डरली लेडी एट लीजर। यहाँ पे एल्डरली से नहीं मतलब है, हमको लीजर से मतलब है, ठीक है। कोई यंग आदमी भी लीजर हो सकता है, ठीक है। तो बट यही सेम काम करने के लिए एक बिजी मैन को कितने मिनट लगते हैं? सिर्फ 3 मिनट। क्या करना है? लिखना है कि नहीं, तो ये तो तुरंत ही डिसाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। क्या लिखना है, तो आपको क्या लिखना है, टू द पॉइंट आप लिखोगे, अपना लिखोगे, तुरंत अपना अम्ब्रेला ले जाओगे और अपना पोस्ट कर दोगे, फाइन, ख़त्म। क्योंकि एड्रेस तो सारे चीज़ें आपको तुरंत ही पता होंगी, क्योंकि अगर आप किसी के लिए लिख रहे हो तो आपको सारी चीज़ें पहले से ही पता होंगी, ठीक है। द टोटल एफर्ट दैट वुड ऑक्यूपाई अ बिजी मैन फॉर 3 मिनट्स। ये ठीक है, ये एक 3 मिनट्स क्या है? ये है हु हैज़ टू टाइम टू स्पेयर। ये बिजी मैन है, ठीक है। ऑल टोल्ड मे दिस फैशन लीव अनदर पर्सन कंप्लीटली एग्जॉस्टेड आफ्टर अ डे ऑफ डाउट, एंग्जाइटी एंड टॉयल, ठीक है। मतलब ये उसके लिए सिर्फ 3 मिनट का काम है, बट कोई अगर बंदा, मतलब कोई भी आदमी या औरत जो कि फ्री हो, बहुत लीजर हो, ठीक है, उसके पास बहुत ही खाली टाइम है, ठीक है, उसके पास कुछ करने का नहीं, मतलब कोई भी टाइम नहीं है और कुछ करने का, ठीक है, तो फिर उसके लिए ये क्या है? एक बहुत बड़ा काम है, ठीक है। कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, वो उसको पूरे दिन तक थका देगा, डाउट में रखेगा कि भेजें कि ना भेजें, एंग्जाइटी लेवल उसकी बढ़ जाएगी और वो थक जाएगी लास्ट में जाके, ठीक है। तो यही है इस पूरे का। अगर मैं मतलब ये वैसे ही तो इतना छोटा सा पैराग्राफ है, इसमें समरी क्या लिख सकते हैं, बट एक चीज़ इसकी समरी तो बस यही हम लोग बता सकते हैं कि एक छोटे सा काम के लिए, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर काम है, ठीक है, अगर वही काम हम लोग एक बिजी मैन से करवाते हैं तो वो बहुत ही लिमिटेड टाइम और बहुत कम टाइम में कर देता है। बट वही काम अगर हम लोग किसी फ्री आदमी या फ्री औरत से करवा रहे होते हैं जिसके पास और कोई काम नहीं होता है, तो वो काम वो पूरे मतलब जितना टाइम आप उसको दे दोगे वो उतने टाइम में करेगा। आप समझ लो, आप एक सेम काम के लिए एक बिजी मैन वो अगर आधे घंटे में कर देगा, वही सेम काम अगर आप किसी को 3 घंटा दे दो, एक फ्री मैन को, वो 3 घंटा में करके देगा, वो आधे घंटे में नहीं करके देगा। वो समझ रहे? इसका मतलब ये है पूरे के पूरा मतलब इस पूरे का समरी ये आ गया, ठीक है। तो पूरा क्लियर हो गया?
ठीक है। और यस, अगर कोई डाउट हो इन रिगार्डिंग एनीथिंग, ठीक है, तो आप मेरे कमेंट में नीचे लिख सकते हो, ठीक है, कि और कोई भी क्वेश्चन हो, और या फिर आप मुझे यू कैन मेल मी योर डाउट, मेरा मेल डिस्क्रिप्शन में, यू विल गेट माय मेल इन द डिस्क्रिप्शन। और यस, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। फाइन। सो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट हैपन्स व्हेन द टाइम टू बी स्पेंट ऑन वर्क इंक्रीजेस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने सेकंड थिंग पढ़ा था, हम लोगों ने सेकंड थिंग ई, वो क्या था, ई एलिमिनेशन। एलिमिनेशन यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये सिंपल यहाँ पे कोई इन्फ्रेंस बड़ा बहुत टफ नहीं आ रहा है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, सिंपल इन्फ्रेंसेस दी है, ठीक है। वर्क डन, देखो अब क्या बोल रहा है, व्हाट हैपन्स व्हेन द टाइम टू बी स्पेंड ऑन सम वर्क इंक्रीजेस। अगर किसी काम के लिए वो जो निर्धारित समय है उसको बढ़ा दिया जाए, ठीक है। अगर मतलब कुछ एक लिमिटेड टाइम दिया गया है किसी वर्क के लिए और उसको इंक्रीज कर दिया जाए उस टाइम को, तो क्या होगा, वर्क विल बी इज डन स्मूथली। नहीं, ये पूरे आपको पूरे उसमें कहीं पे स्मूथ वर्ड दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। जब आपको स्मूथ वर्ड दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर ये द वर्क डन इज स्मूथली अपने आप खराब हो गया, गलत हो गया, ठीक है। द वर्क डन इज लीजरली, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे हाँ यार ये लीजरली वर्ड तो मुझे यहाँ से दिख रहा है, बट यहाँ पे क्या है, अगर टाइम इंक्रीज कर दिया जाए तो वर्क डन इज लीजरली, ठीक है। हाँ, तो अब आप देखिए इसमें मेथड ऑफ हम लोग एलिमिनेशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब चलो ठीक है, हम लोग इंग्लिश की बात करें तो आई विल स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। हाँ, सो द डिस्क्रिप्शन दैट the lady who has enough leisure time, fine, takes the entire day, ठीक है, टेक्स द एंटायर डे। वो कैसे एंटायर डे लेती है कि पहले लिखे ना लिखे, फिर अपने चश्मा ढूंढने में, फिर सर्च ढूंढने, वो एड्रेस सर्च करने में, फिर वो लिखने में, फिर उसके बाद अम्ब्रेला लें कि नहीं लें, फिर उसको डिलीवर करने में पूरा दिन निकाल देती है, ठीक है। ये है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ये तो आएगा नहीं, कहीं एडिशनल काम के तो दिया नहीं, पहले ही टाइम बढ़ा दिया गया, और कितना टाइम बढ़ाएंगे, नहीं। तो ये द वर्क नीड एडिशनल टाइम और द वर्क डन इज स्मूथली, तो बिल्कुल गलत है। अब हम लोग के बचे हैं बी और सी, ठीक है। हो क्या रहा है कि ये देखिए यहाँ पे किसी को 3 मिनट्स दिया गया, यहाँ पे एक उस ओल्ड वुमेन को 24 आवर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे वर्क डन इज लीजरली, नहीं, दोनों जगह पे काम तो किया जा रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि काम इनएक्टिवली किया जा रहा है, सब लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं। लीजर ऐसे तो नहीं आपने कहीं पे देखा कि वो पहले चश्मा ढूंढी फिर अपना सोने गई, उसमें फिर आधे घंटे एड्रेस देने और फिर सोने गई, ये लीजरली हुआ ना। आप सारा काम अपना पहले थोड़ा सा काम कर रहे हो फिर रेस्ट कर रहे हो, थोड़ा सा काम कर रहे हो रेस्ट कर रहे हो, ये लीजरली काम हुआ, ठीक है। बट ऐसा तो नहीं हो रहा है, रेस्ट तो कहीं भी, ये पूरी ओल्ड लेडी भी कहीं रेस्ट तो नहीं कर रही है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, पूरा ये जो काम है ना, द वर्क कंज्यूम्स ऑल द टाइम। तो बी हट गया, ए हट गया, डी हट गया, फाइन। तो हमारा आंसर हो गया सिर्फ सी, बी नहीं है आंसर। बी क्यों नहीं है, क्योंकि वर्क डन इज नॉट लीजरली, लीजर में काम नहीं हो रहा है, लीजर लेडी है बट काम वो लीजरली नहीं कर रही, काम वो एक्टिवली कर रही है अपने हिसाब से, बट काम स्लो कर रही है, ये बोल सकते हैं, फाइन। तो आगे चले, ठीक है। तो आंसर इज सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द सेंटेंस वर्क एक्सपैंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। ठीक है भाई, तो हम लोग का क्या है, हम लोग ने क्या बोला था, वर्क एक्सपैंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। यही हमारे आपने लास्ट उसमें देखा था, किसमें, लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि जितना ज़्यादा आपको टाइम मिल जाएगा एक काम करने के लिए, आप पूरा का उतना ही काम आप पूरे टाइम में करते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, दिस देखिए इफ़ यू हैव मोर टाइम यू कैन डू मोर वर्क, ऐसा तो नहीं है। उसके पास, उस ओल्ड लेडी के पास 24 आवर्स थे, तो फिर वो ज़्यादा काम तो कर नहीं पा रही थी, तो सी तो हट गया हमारा,
ठीक है। उसके बाद द मोर वर्क देयर इज टू बी डन द मोर टाइम इज टू बी नीडेड। ये और ये सेंटेंस कहीं पे मैच नहीं कर रहा ना, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है वर्क एक्सपैंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल। ठीक है, वर्क एक्सपैंड्स हो रहा है, वर्क बढ़ मतलब वर्क को आप ऐसा बढ़ा रहे हो कि उसका टाइम उसको ज़्यादा लगे, बट वर्क तो नहीं बढ़ रहा ना। ठीक है, तो यहाँ पे ए तो कहीं नहीं आएगा, वैसे ही सी नहीं आएगा। अब हम लोग बात करते हैं डी की। इफ़ यू हैव सम इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू यू शुड ऑलवेज हैव सम एडिशनल टाइम। तो ये इफ़ यू हैव सम इम्पॉर्टेंट वर्क, ये इम्पॉर्टेंट वर्क कहाँ लिख रहा है, यहाँ पे कहीं आपने इम्पॉर्टेंट लिखा है, नहीं लिखा है, तो ये आउट ऑफ स्कोप हो गया हमारा। सी हमारा आंसर गलत है, ए हमारा आंसर गलत है, तो हमारा आंसर आया क्या, सिर्फ बी आया। क्यों, जितना भी टाइम आपके पास अवेलेबल होगा फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क all of it will be used. Fine. Okay, देखो a statement is made right in the beginning of the passage and the story of the lady illustrates the facts that whatever time is available for a work people tend to use all of it. Fine. Here you will see that starting line, here you will see this beginning of this line, work expands so as to fill the time available for the completion. Fine. And this line is explained by this old lady delivering a post box. Fine. Compared with this busy man posting the same letter in 3 minutes. Fine. Okay, so let us move ahead. आंसर है हमारा बी। फाइन, चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, क्वेश्चन 3 कहता है हु इज द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टू डू अ वर्क। ठीक है, मोर टाइम टू डू अ सेम वर्क। ठीक है, टू डू अ वर्क या टू डू सेम वर्क। बिजी मैन नहीं, मैंने बता दिया बिजी मैन तो कितना कम टाइम लेता है। ठीक है, अब दूसरा आया एग्जॉस्टेड मैन। ये एग्जॉस्टेड तो आपने कहीं वर्ड दिखा ही नहीं। ठीक है, तो एग्जॉस्टेड जब आपने कहीं वर्ड देखा नहीं, एग्जॉस्टेड आपने ये लास्ट में देखा होगा। ये जो आप एग्जॉस्टेड है, ये एग्जॉस्टेड क्या बता रहा है, ये जब लेडी ये पिलर मतलब अपना लेटर पोस्ट करके आती है तो उसे एग्जॉस्ट फील होता है, ना कि वो पहले से एग्जॉस्ट होके वो लेटर वो काम कर रही होती। फाइन, तो एग्जॉस्टेड तो कहीं से आया नहीं, तो ये एग्जॉस्टेड नहीं है। ठीक है, अब हमारा क्या, अ मैन ऑफ लीजर और एन एल्डरली पर्सन। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था आपसे, अगर आपने मेरे पूरा पैराग्राफ जब मैंने अच्छे से समझाया था, यहाँ पे एल्डरली लेडी के बारे में बात नहीं हो रही है, उसके पास एट लीजर है ना, इस पे बात हो रही है। एल्डरली लेडी मैंने क्या बोला, ये क्या बिजी मैन आपको पता है क्या कि वो एल्डर नहीं है? एल्डर हो भी सकता है और एल्डर नहीं भी हो सकता है, तो उससे तो आपको कहीं पे नहीं दिख रहा कि एल्डर की वजह से है यहाँ पे वो लेट कर रहा है या फिर वो यंग है यहाँ पे इसलिए वो जल्दी कर रहा है। नहीं, ये एल्डर बिजी मैन भी हो सकता है, यंग बिजी मैन भी हो सकता है। फाइन, तो ऐसे ये एल्डरली एट लीजर हो सकती है या फिर नॉर्मल यंग एट लेडी भी एट लीजर हो सकती है। ठीक है, तो एज से तो कोई डिफरेंस आया नहीं, तो जब एज से कोई डिफरेंस आया नहीं तो हमारा सी भी हम लोग का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ हमारा बी, अ मैन ऑफ लीजर। फाइन, तो आंसर है हमारा बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल टाइम स्पेंड बाय द एल्डरली लेडी इन राइटिंग अ पोस्ट कार्ड। ठीक है, अब आप टोटल टाइम, अरे ये देखिए पहले टोटल टाइम देख लें, 3 मिनट्स तो नहीं है। 3 मिनट्स किसने लिया था, 3 मिनट्स आपके उसने लिया था, वो कौन है, वो एक बिजी मैन ने लिया था। 3 मिनट्स तो नहीं है। हाफ एन आवर तो सीधे सीधे सिर्फ उसने हाफ एन आवर देखते हैं। तो क्या है, ये देखिए हाफ एन आवर तो उसने सिर्फ एड्रेस ढूंढने में लगा दिया, तो वो हाफ एन आवर तो नहीं है। अब वहाँ पे वो बोल रहा है 5 hours and 5 minutes। कहीं आपको मिनट्स की चीज़ दिख रही है? नहीं दिख रही है। ठीक है, वो मतलब आप वो सीधे सीधे बोलना क्या चाह रहा है, ये सीधे सीधे बोलना चाह रहा है कि वो एक लेटर लिखने में उसका पूरा दिन चला गया। ठीक है, पूरा दिन का मतलब कितना होता है, होल डे। होल डे मतलब होता है 24 आवर्स डी। हमारा आंसर क्या है, डी। फाइन, लास्ट क्वेश्चन
लास्ट क्वेश्चन क्या है, वॉट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स, पिलर बॉक्स क्या था, पिलर बॉक्स अगर आपको याद आए तो पिलर बॉक्स था कि जिसमें वो पिलर बॉक्स अपना लेडी जाके पिलर बॉक्स वो अक्रॉस द मतलब पहले वो पूरा लेटर लिखती है जिस पिलर बॉक्स में वो पोस्ट करती है अपना लेटर, उसको हम लोग पिलर बॉक्स कह रहे थे। फाइन, ओके ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, पिलर बॉक्स क्या एक्सप्लेन करता है। अब देखिए पिलर बॉक्स क्या एक्सप्लेन करता है, अ बॉक्स अटैच्ड टू द पिलर, नहीं बॉक्स, अब तुम पिलर बॉक्स क्या करोगे, अगर मतलब अगर आपको लेटर डालने जाना है तो क्या करोगे आप, अ बॉक्स अटैच्ड टू द पिलर, जस्ट अ सेकेंड। फाइन गाइस, लेट मी present it to you all. Yeah, so what will it be, a box attached to the pillar, no nothing, what will I do, box office तो नहीं होगा, a box in the pillar, पिलर के अंदर तो नहीं हो सकता, अब a pillar type post box जिसमें अंदर लेटर हम लोग डाल सकें, करेक्ट। फाइन, so guys now I am ending this session, okay, so if you have any doubt comment कर देना, and please make sure that you like, comment, share, और जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ शेयर कर देना। फाइन, हैप्पी एंडिंग गाइस, एंडिंग द लेक्चर, बाय, हैप्पी लर्निंग गाइस।